वेलकम टू आर एन क्यू अकेडमी। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड वाज प्रोपाउंडेड बाय, ऑप्शंस आर ए हिग्स, बी एलन, सी अल्फ्रेड मार्शल, डी एडम स्मिथ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्फ्रेड मार्शल. So, the law of demand was propounded by Alfred Marshall. Next question. The law of demand shows a relation between, options are A. Demand and supply of a commodity, B. Income and price of a commodity, C. Income and quantity demanded of a commodity, D. Price and quantity demanded of a commodity. Right answer is option D. Price and quantity demanded of a commodity. So, law of demand shows a relation between price and quantity demanded of a commodity. Next question. The law of demand states that with increase in price, there is, options are A. Increase in quantity demanded, B. Decrease in quantity demanded, C. Quantity demanded remain unaffected, D. Quantity demanded remain constant. Right answer is option B, decrease in quantity demanded. The law of demand states that with increase in price, there is decrease in quantity demanded. Next question, according to law of demand, which type of relationship exists between price and quantity demanded? Options are A. Positive, B. Proportional, C. Inverse, D. Constant. Right answer is option C, inverse. So, according to law of demand, inverse relationship exists between price and quantity demanded of a commodity. Law of demand अल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने 1892 में डेवलप किया है और प्रोपाउंड किया है। लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में रिलेशनशिप शो करता है। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स जब किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, राइज होता है, तब उस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होती है, फॉल होती है। और जब कोई कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड वो कमोडिटी की राइज होती है, इंक्रीज होती है। सो एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, there exists the inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. When price of a commodity rises, quantity demanded for that commodity falls. When price of a commodity falls, the quantity demanded for that commodity rises. Next question. Normally, the shape or slope of the demand curve is, options are A. Downward sloping, B. Upward sloping, C. Vertical, D. Horizontal. Right answer is option A. Downward sloping. So, normally, shape or slope of the demand curve is downward sloping. Next question. Demand curve slopes. Options are A. Upward from left to right, B. Upward from right to left, C. Downward from right to left, D. Downward from left to right. Right answer is option D, downwards from left to right. So, demand curve slopes downwards from left to right. Next question. Normally, the slope of the demand curve is, options are A. Positive, B. Negative, C. Vertical, D. Horizontal. Right answer is option B, negative. So, normally the slope of the demand curve is negative. डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होती है लेफ्ट टू राइट की तरफ। डिमांड कर्व की स्लोप निगेटिव भी होती है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप होती है।
तो डिमांड कर्व का राइट, जो हमारा राइट होता है वही ग्राफ का भी राइट होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वही ग्राफ का भी लेफ्ट होता है। सो वाई एक्सिस हमारा जनरली लेफ्ट रहेगा और एक्स एक्सिस की तरफ जितना हम दूर जाएंगे उतना वो राइट की तरफ जाता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है और वो लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप होता है। डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव भी होती है। इट मीन्स डैट जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। तो जब प्राइस कमोडिटी का 500 रुपीज़ था तो डिमांड मार्केट में सिर्फ 40 यूनिट्स की थी, लेकिन प्राइस जब 200 रुपीज़ हुआ तो मार्केट में डिमांड 70 यूनिट्स की थी। इसलिए हम कहते हैं कि डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। जब एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, जब एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ सप्लाई शोज अ रिलेशन बिटवीन ऑप्शंस आर ए डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, बी इनकम एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सी इनकम एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, डी प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। Right answer is option D, price and quantity supplied of a commodity. So law of demand shows a relation between price and quantity supplied of a commodity. Next question, the law of supply states that with increase in price there is, options are A increase in quantity supplied, B decrease in quantity supplied, C quantity supplied remain unaffected, D quantity supplied remain constant. Right answer is option A, increase in quantity supplied. So law of demand बोलता है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस कमोडिटी का सप्लाई भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड? ऑप्शंस आर ए पॉजिटिव, B proportional, C inverse, D constant. Right answer is option A, positive. So according to law of supply, positive relationship exists between price and quantity supplied. So law of supply दो चीज़ों में रिलेशनशिप शो करता है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स डैट जब कोई कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तब उसका क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती है। जब कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल होती है, डिक्रीज होती है। सो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होंगी, जब प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द शेप और स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व इज, ऑप्शंस आर ए डाउनवर्ड स्लोपिंग, बी अपवर्ड स्लोपिंग, सी वर्टिकल, डी हॉरिजॉन्टल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मली द शेप और स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई कर्व स्लोप्स, options are A upward from left to right, B upward from right to left, C downward from right to left, D downward from left to right. Right answer is option A, upward from left to right. So supply curve slopes upward from left to right. सप्लाई कर्व की स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग होती है और ये लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करती है। तो सप्लाई कर्व आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसकी जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोपिंग है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड स्लोप कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? ऑप्शंस आर ए देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, बी देयर इज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सी
there is no change in the customs. D, there is no change in the quality of product. Right answer is option B, there is change in income of the consumer. So ये लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन नहीं है. लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन है कि देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है दो चीज़ों में, क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में. इट मीन्स डैट जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज होती है. सो प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, हम अज्यूम करते हैं कि दूसरे चीज़ें जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सब इक्वल है, वो सब कांस्टेंट है. और वो कांस्टेंट मानकर, वो कांस्टेंट अज्यूम कर कर हम क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में रिलेशनशिप शो करते हैं. प्राइस के अलावा ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है? वो है टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, कस्टम्स, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो ये सब चीज़ें हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहते हैं, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती. सो ये सब लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन है. ये अजम्पशन जब फॉलो होते हैं तभी हम प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशनशिप शो कर पाते हैं. जब प्राइस इंक्रीज होता है तब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि डिमांड को जो अफेक्ट करने वाली दूसरी चीज़ें हैं वो सब कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? ऑप्शंस आर ए, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, बी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, डी, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? ऑप्शंस आर ए, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, बी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, डी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो किसी कमोडिटी के डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं? तो वो ये सब डिटर्मिनेंट्स है, ये सब फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो उसमें है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज लाइक सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, expectations of consumer regarding the prices in the future, distribution of income, number of buyers in the market. So ये सब डिटर्मिनेंट्स, ये सब फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं. इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं. डिमांड कभी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? ऑप्शंस आर A, state of technology, B, government policies like taxes and subsidies, C, cost of production, D, all of the above. Right answer is option D, all of the above. Next question, which of the following is not the determinant of supply? Options are A, state of technology, B, government policies like taxes and subsidies, C, cost of production, D, taste and preferences of consumer. Right answer is option D. Taste and preferences of consumer is not the determinants of supply. Taste and preference of consumer ये determinants of demand है, determinants of supply नहीं है. So determinants of supply कौन कौन से है? ऐसे कौन से factors है जो supply को influence करते हैं? तो वो ये सब determinants है, ये सब factors है जो supply को influence करते हैं, जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं.
उसमें आता है नेचुरल कंडीशंस। स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए नेचुरल कंडीशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, इस पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सप्लाई डिपेंड होता है। उसी तरह ट्रांसपोर्ट कंडीशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक फायर, वॉर्स, अर्थक्वेक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेस एंड सब्सिडीज, नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है या मोनोपोली मार्केट है, और सेल्फ कंजम्पशन। ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। किसी भी चीज़ का सप्लाई इन फैक्टर्स पे, इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ मार्केट in which demand for a commodity equals the supply of the commodity is known as, options are A. market equalization, B. market equilibrium, C. market condition, D. market disequilibrium. Right answer is option B, market equilibrium. So market equilibrium क्या होता है? जब किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होता है तब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। सो यहाँ पे किसी कमोडिटी का मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। अब ग्राफ में देख सकते हैं, जब कमोडिटी का प्राइस 40 रुपीज़ था तब मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल था, 400 यूनिट्स। सो एल पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी बोथ आर इक्वल्स एट अ प्राइस ऑफ 40 रुपीज़।